मिला, ये बहुत ही अच्छा है कि आपके साथ में हैं हम लोग। Yeah, I pray that God will bless this time, and the time that you are dedicating to this, it will be useful for each one of us. आशा करता हूं कि परमेश्वर इस जो आशीषमय समय है वो हमको दिए हैं और हमें आशीष करेंगे। ये बहुत ही लाभदायक समय हमारे लिए रहेगा। By the grace of God, we have been considering the titles of the Lord for the many weeks now. Pardon, sir, once again. By the grace of God, we have been considering the titles of the Lord. और हम लोग परमेश्वर के अनुग्रह से प्रभु यीशु मसीह के नामों की जो पद नाम है उनकी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। Yeah, we started looking from the usage "I am" by our Lord Jesus Christ. और हम लोगों ने मैं हूं इस शब्द से आरंभ किया था परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए। Yeah, when Jesus Christ used this title "I am," the Jews got angry. They tried to kill him. और जब प्रभु यीशु मसीह ऐसा कहा करते थे कि मैं हूं और मैं हूं पहले से, तो जो यहूदी लोग थे उनके ऊपर गुस्सा हो जाया करते थे। Yeah, and we understood that the reason was because "I am" is a title of the Lord of the Israel. और हम जानते हैं मैं हूं ये जो इज़राइल का परमेश्वर है उनका पद है, उनका नाम है। And then we looked at in detail where this name came from. We understood it was a name given by God, revealed by God to Moses. हम ये भी जानते हैं, हमने ये भी सीखा कि ये परमेश्वर ने इस नाम को मूसा को प्रकट किया है। And we understood this is not just a name, it talks about the whole nature of God. और हम ये भी अध्ययन किए हैं कि ये केवल एक नाम ही नहीं है, ये परमेश्वर की प्रकृति, उनका जो स्वभाव के उसमें छुपा हुआ है। Yeah, what God is saying is that I don't exist in reference to anything. I am complete in myself. और परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं मुझे किसी के आवश्यकता नहीं है कि वो मुझे बताए कि मैं पूरा हूं, मैं अपने आप में पूर्ण हूं। Yeah. And we are talking about his omniscience. He knows everything. He is present yesterday, today, and forever. हम उनके ज्ञान के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया कि वो सर्वज्ञानी हैं। And he is omnipresent. He is present in every situation. और वे सर्वव्यापी हैं, और सर्वव्यापी से मतलब वे सभी जगह उपस्थित हैं। हमने इस बात का भी अध्ययन किया। And the title "When I am that I am" understands that he is all powerful. He can do what he wished to do. और ये जो पद और जो नाम परमेश्वर ने दिया, जो मैं जो हूं सो हूं, ये बहुत ही ताकतवर और बहुत ही सामर्थी नाम है। Yeah. And we understood that name, they came to use it as Yahweh, or which is known as Jehovah. और हम जानते हैं ये जो नाम दिया गया है कि यावे, मतलब मैं यहोवा परमेश्वर हूं। Yeah. And so wherever we read Jehovah, it is referring to this name, "I am that I am." जहां कहीं यहोवा नाम करके हम लोग देखते हैं बाइबल में, उसका मतलब यही है मैं जो हूं सो हूं। Okay, and then we started looking at the titles starting with Jehovah. और हम लोगों ने जो यहोवा नाम से जो पद नाम और जो आरंभ हुए उनको अध्ययन करना आरंभ किया है। Yeah, and we understood there are 10 titles starting with the name Jehovah. और हम लोगों ने ये यहोवा नाम से 10 ऐसे पद नाम हैं, हमने उनका अध्ययन किया है। And we understood that each of these titles reveals a character of God. It talks about one particular character of our Lord. और हमने ये भी अध्ययन किया कि प्रत्येक जो पद दिया गया है मैं हूं करके, ये हर एक परमेश्वर के स्वभाव को प्रदर्शित करते हैं। Yeah, and then we understood in the Psalm number 23, David has used 8 of these titles. और हम लोग ये भजन संहिता 23 अध्याय में देखते हैं कि ये 8 नामों को दाऊद राजा अपने उस भजन में प्रयोग करते हैं। And then for the last couple of weeks, we have been considering that psalm and discussing on each of these titles. और कुछ हफ्तों से हम लोग इस नाम के विषय में, इस पद नामों के समझने के लिए हम लोग भजन संहिता 23 से अध्ययन कर रहे थे। And we looked at, let us come to Psalm number 23. We started from "The Lord is my shepherd." और हम लोगों ने भजन संहिता 23 से हमने इससे आरंभ किया कि परमेश्वर यहोवा मेरा चरवाहा है।
And we understood that is a title, Jehovah Rohi. और हम समझ गए कि ये जो यहोवा का जो टाइटल दिया गया, जो पदनाम है, वो है यहोवा रोहाई. And that is a very important title, and Jesus Christ used it extensively during his public ministry. और हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने इस नाम को, इस पद को अपने जो सार्वजनिक सेवा में उसको यूज किया है. He said, I am the good shepherd. और प्रभु यीशु मसीह ने एक सार्वजनिक तौर से कहा है, मैं एक अच्छा चरवाहा हूं. And then we looked at the next title, I shall not want, which is the title connected with Jehovah Jireh. और दूसरा जो हम लोगों ने टाइटल को देखा, वो है यहोवा यीरे, कि मुझे कुछ बात की घटी नहीं है, मुझे कोई चीज की आवश्यकता नहीं है. We also understand that it is not just about providing, it is God understanding us, God knowing our feelings, what we are going through. और ये ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमें कुछ देना नहीं चाहिए, लेकिन वे हमारे शरीर, हमारे जीवन की इच्छाओं को समझ लेते हैं. Yeah, so the God who sees, the God who experiences. और देखिए, वो परमेश्वर है जो देखते हैं और हमारे जरूरतों को महसूस भी करते हैं. And then we looked at the title Jehovah Shalom when we saw the sheep lying down in the cool pastures. और हम लोगों ने इस बात को भी अध्ययन किया कि यहोवा शालोम करके, वो यहोवा मेरी शांति है, वो मेरे लिए मेज लगाते हैं. इस प्रकार से हमने अध्ययन किया. And last week we looked at a title which God took on himself. He said, I am Jehovah Rapha, the God who heals. और पिछले हफ्ते में हमने ये अध्ययन किया था कि परमेश्वर खुद अपने आप से इस बात को लेते हैं, और हमने अध्ययन किया था यहोवा रफा, मतलब वो चंगा करने वाला. And we saw that in verse 3 David is saying, he restores my soul, he heals me. और वहां पर हम पढ़ते हैं कि दाऊद राजा कहते हैं, वह मेरे जी में जी ले आते हैं. And we understood we are not only talking about physical healing, we are talking about physical, emotional and the spiritual healing. और केवल हम लोग एक शारीरिक चंगाई की बात नहीं कर रहे हैं. इस वचन में परमेश्वर ने जो कहा है और जो दाऊद राजा के द्वारा लिखा है, उसमें शारीरिक, आत्मिक और आर्थिक रूप से जो चंगाई है. Yeah, and the most important of that is the spiritual healing. When Jesus says, when Peter says, by his stripes we are healed. और हम लोग इस वचन में, इस बात में हम लोग ये ज्यादा समझते हैं, आत्मिक चंगाई है. जिस प्रकार से पतरस कहते हैं, उनके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए. And today, God willing, we are going to look at the next title, which is again taken by God himself. He said, I am Jehovah Sitkeno. The Lord is your righteousness. और हम लोग जो आज सीखने जा रहे हैं, यहोवा सिक्केनो, मतलब परमेश्वर धर्मी है. And that we read in the next portion of verse 3. He leads me to the paths of righteousness for his name's sake. और हम लोग आगे इस बात को हम लोग सीखते हैं उसी में कि परमेश्वर मुझे धर्म के मार्गों में ले चलते हैं. Yeah, and for why? For his name's sake. और वे कहते हैं, आगे हम पढ़ते हैं, उनके नाम के निमित्त. So that is the portion we are considering today. The God that is righteousness. आज इसी जो धार्मिकता की बात है, इस पर हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं. Where do we see this title? Where is it mentioned? और ये बातों को, इस टाइटल को, इस पाद्य को हम लोग कहाँ देखते हैं? This is not a very commonly discussed title, so many of us might not be knowing this title, Jehovah Sitkeno. और ये जो क्या है, इस बात को ज्यादा हम लोग सीखते नहीं है, so ज्यादा हम लोगों को मालूम भी नहीं होगा. कुछ लोगों ने सीखा होगा कि यहोवा सिक्केनो. Yeah, we read that in Jeremiah chapter 23. हम लोग यिर्मयाह 23 अध्याय में इस बात को हम लोग पढ़ते हैं. When there God is actually discussing about the character Jehovah Rohi, the Lord, the shepherd. और हम लोग वहां पर यहोवा रोहाई का जो उपाधि है, उसको हम लोग पढ़ते हैं वहां पर. And in that connection, then he is saying, now the people will come to know me as Jehovah Sitkeno. और प्रभु यीशु परमेश्वर वहां पर कहते हैं कि लोग मुझे यहोवा सिक्केनो के नाम से भी जानेंगे.
Yeah, we will read that and we will discuss the background of it. Jeremiah chapter 23. आज हम लोग उस बात को, उस प्रस्तावना को देखें। Yeah, here the Lord is promising a restoration to the nation of Israel. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं परमेश्वर यिर्मयाह भविष्यवक्ताओं द्वारा इजराइल को झूठे भविष्यवक्ताओं के प्रति जो उनको शिक्षा दे रहे हैं। And he is promising a king will reign over them. और वहां पर परमेश्वर कहते हैं कि एक राजा उठ खड़े होंगे और आप पर शासन करेंगे। And the name of the king is given there. Jigar bhai? Brother? Yeah, I think it's my connection. Yes, now all right. Okay, now? Okay. And can we continue? Yes, The name of the king is mentioned there in Jeremiah. और उस राजा का नाम यिर्मयाह 23 अध्याय में दिया गया है। Yeah, we will read that, Jeremiah chapter 23 verse 5 to 6. आइए हम लोग यिर्मयाह 23 अध्याय 5 से 6 वचन तक पढ़ेंगे, 5 और 6 वचन को। यहोवा की यह भी वाणी है, ऐसे मैं दाऊद के एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इस्राएली लोग निडर बसे रहेंगे और यहोवा उसका नाम हमारी धार्मिकता रखेगा। Yeah, and that last portion, which is the name of the king, the Lord our righteousness, in Hebrew it is called as Jehovah Sitkenu. और हम लोग 6 वचन का आखिरी भाग में हम लोग देखते हैं वो राजा जो यहोवा, उसका जो नाम है हमारी धार्मिकता, और जो इब्रानी भाषा में पढ़ते हैं यहोवा सिक्केनो। We very well know, I don't have to go into detail, we are talking about Lord Jesus Christ, the branch of David. और ये मैं ज्यादा उस विस्तारित रूप में नहीं आऊंगा, लेकिन यीशु मसीह की वंशावली और उस लाइन से आने की बात कर रहे हैं। He is talking, I will raise to David a branch of righteousness. और यहाँ पर हम देखते हैं इस बात को बताया जा रहा है कि मैं के बीच में एक दाऊद की उस कुल को उपजाऊंगा और उगाऊंगा। And he is promising about how good that king will be, how he will reign Israel. और वे कह रहे हैं कि ये जो राजा जो धर्मी वो इस्राएल में कैसे राज्य करेगा, उस बात को बता रहे हैं। We are talking about salvation there. The days the Judah will be saved, Israel will dwell safely. और हम लोग उस उद्धार के बारे में पढ़ रहे हैं कि जो यहूदा है वह उद्धार पाएगा, और क्या कहते हैं जो इजराइल है वो भी अच्छे से रहेंगे। We know this is a promise which was given to David in 2 Samuel. We don't have to take. God is promising to David that there will be a king always in your line. और हम लोग ये जानते हैं वचन के द्वारा कि ये परमेश्वर का हमारे लिए और इजराइल के लिए एक वायदा है जो दूसरा सामुएल में हम लोग पढ़ते हैं। Yeah, and we know that we are connected with Lord Jesus Christ. Jesus Christ is the branch of David.
हम जानते हैं दाऊद राजा के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह से जुड़ गए हैं, क्योंकि यीशु मसीह ही वह अंकुर, वो धर्मी अंकुर है। Okay, so that much context is clear. Now we look at that particular character of God, righteousness. Okay, righteousness is an attribute of God. It is a character of God. और जो धार्मिकता है वो परमेश्वर का स्वभाव है। Okay, to explain it, let me put it this way. As humans, we have to do the right things. और मैं आपको समझने के लिए मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, हम लोग सोचते हैं कि हमें कार्य करना चाहिए। As man, as humans, we have instruction in the Bible to do right thing, what to do, how to conduct. और हम जानते हैं कि हमको कैसे अच्छा कार्य करना है, हमें कैसे व्यवहार करना है, इस बातों को हम बाइबल में पढ़ते हैं। Yeah. So as humans, we have to do the right thing. होने के नाते हम लोगों को अच्छे मानवता की कार्य करना है। Which means there is a possibility we can do the wrong things. और इसका अर्थ यही है कि हमसे ऐसी संभावना है हम गलत कार्य भी कर सकते हैं। That is why we have to do the right things. इसीलिए हमें सही कार्य, अच्छे कार्य ही करने चाहिए। Yeah. Now when we say God is righteous, और जब हम ये बात को कहते हैं कि परमेश्वर धार्मिक है, it is not that God keeps doing the right things. और इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर अच्छे ही कार्यों को, धर्मी कार्यों को करते रहते हैं। It is this, whatever God does is right. उसका मतलब ये है परमेश्वर जो कुछ भी करते हैं वह धर्मी कार्य ही और धार्मिकता के कार्य ही करते हैं। He cannot do an unrighteous thing. It is his character to do the right thing. और वे अन्यायिक काम या दूसरे बातों बुरे कार्य नहीं करते हैं। He cannot do it. That is his character. His character is whatever he does, that is the right thing. और वे उनका इस बात का कहने का तात्पर्य ये है, प्रभु परमेश्वर गलत कार्य कर ही नहीं सकते हैं, इसीलिए उन वे जो भी करेंगे वो धर्मी का या धार्मिकता का कार्य ही करेंगे। That is why he is called as Jehovah Sidkenu. He is my righteousness. इसीलिए परमेश्वर को कहा गया यहोवा सिक्केनो, मतलब वह हमारी धार्मिकता है। Okay, there cannot be any wrong or any error, any dishonesty in God. और हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसमें किसी प्रकार का गलत नहीं है, किसी प्रकार का आदर मान ये कम नहीं हुआ है। Yeah, in Psalm 119, verse 142, let us read that. Psalm 119, verse 142. आइए हम लोग भजन संहिता 119 का 142 पढ़ेंगे। Yeah, there we read about God as, हम लोग वहां इस प्रकार से पढ़ते हैं, your righteousness, तेरा धर्म। Yes, sir. Yeah, you can read it. Yeah, 142. तेरा धर्म सदा का धर्म है और तेरी व्यवस्था सत्य है। Yeah, so we are talking about an everlasting righteousness. It cannot change. It is always true. और हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रभु परमेश्वर का जो धर्म, so at one hand we have God who is righteous by nature. It is his character to be righteous. और दूसरी तरह से हम बात करें, हमारे पास वो परमेश्वर है जो धार्मिक है और वे धार्मिकता को, भले कार्यों को छोड़ बुरे कार्य नहीं कर सकते। And in contrast we see us humans.
और उनके उसके विपरीत हम देखें तो हमसे तो बुरे कार्य हो जाते हैं। Yeah, let us read in Psalm 51 verse 5. आइए हम लोग भजन संहिता 51 का 5 पढ़ेंगे। Yeah, it is a familiar portion. There we read, I was brought forth in iniquity. In sin my mother conceived me. पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। Okay, one more portion we'll read from Job chapter 25 verse 4. आइए हम लोग अय्यूब 4 का जॉब 4 Job 25 verse 4. ये अय्यूब 25 का 4 वचन हम लोग पढ़ेंगे। फिर मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी क्यों कर ठहर सकता है, और जो स्त्री से उत्पन्न हुआ क्यों कर निर्मल हो सकता है। Yeah, their job is saying it is not possible for a man to be righteous before God. It is not possible. अय्यूब ये कहना चाहते हैं कि परमेश्वर के सामने मनुष्य धर्मी नहीं हो सकता। And one more portion we read from the New Testament, Romans chapter 3 verse 10. आइए हम लोग रोमियो हम लोग पढ़ेंगे रोमियो की पत्री में। Romans chapter 3 verse 10. सर चैप्टर chapter 3 verse 10. रोमियो ये हम लोग 3 अध्याय 10 वचन पढ़ेंगे। रोमियो 3 का 10। जैसा लिखा है कि रोमियो 3 का 10। एक भी नहीं। There is none righteous, no, not one. और हमने पढ़ा है कि एक भी धर्मी नहीं है। Okay, we know it's a quotation from Psalms again. और हम जानते हैं कि ये जो बात है वो भजन संहिता से ली गई है। Okay, so we saw two contrasting aspects. One is a God who cannot do unrighteous thing. He is righteous. दो बातों को हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि पहली बात, परमेश्वर बुरे कार्य या अधार्मिक कार्य नहीं कर सकते हैं। Righteousness is his character. He is, whatever he does is right. क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव ही धर्मी है और धार्मिक है, इसलिए वे धार्मिकता के विरोध कर नहीं कर सकते हैं। And in other portion, we saw a man who is born in iniquity, who cannot do anything that is righteous. पाप या धार्मिकता के विरोध में कार्य होने की संभावना है। Yeah, so two poles. One is a God who cannot do anything unrighteous. I think his connection is gone. His connection got. I will translate, sir. Yes, I will translate. Yeah, please. So in one portion, we saw a God who is righteous by nature. He cannot do anything unrighteous.
और एक भाग में हमने देखा कि वो परमेश्वर जो है वो धर्मी है जो अधार्मिकता का कार्य नहीं कर सकते। And in other portion we saw man, us, who cannot do anything righteous. We are born in iniquity. और दूसरी तरफ हमने देखा मानव जाति को, हम लोगों को, जो कि हम धार्मिकता के प्रति और वो अपराधों को छोड़ करके हम धार्मिकता का कोई भी कार्य नहीं कर पाते। Yeah. So in this two extreme poles, it cannot come closer. It is not possible to man to come near to God. और इसलिए इसी के संदर्भ में ये मनुष्य के लिए संभव नहीं था कि वो परमेश्वर के पास जा भी सके। Okay, then how is this title applicable? How can we call God as Jehovah Sitkenu? The Lord is our righteousness. और इसीलिए हम कैसे इस बात को कह सके कि यहोवा वो सकीना है जो हमारी धार्मिकता है। Means we need righteousness from another source. It cannot be from ourselves. और इसीलिए जो धार्मिकता है हमको ये दूसरी ओर से मिलना है, क्योंकि वो हमारी ओर से तो होने की संभावना है नहीं। Yeah, because we cannot. God says, whatever you do is like filth. और क्योंकि वो ऐसा इसलिए क्योंकि हम कुछ भी ऐसा धार्मिकता का कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जो भी करते हो वो बुरा ही होता है। So we have the righteousness from another source, not from ourselves. इसीलिए जो धार्मिकता है वो हमको दूसरी ओर से मिलना जरूरी है, वो हमारे अंदर से प्रकट नहीं हो सकती। Okay, now coming back to Psalm 23, when David is saying, Lord is my righteousness. और अभी हम वापस आकर के जब भजन संहिता 23 में आ जाते हैं, जहां पर दाऊद कहता है कि यहोवा मेरी धार्मिकता है। He says, He leads me through the paths of righteousness. और वो कहता है कि 23 का कितना वर्ष पे Verse 3. वचन 3 में यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह मेरे जी में जी ले आता है। And He leads me to the paths of righteousness. और धार्मिकता के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। Yeah, so He's adding a clause for His name's sake. इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो गुण यहाँ पर वो लिखते हैं अपने नाम के प्रति। Yeah, what David is saying, He is leading me to righteousness. I am righteous now, but not based on my sake, for His name's sake. और इसलिए दाऊद यहाँ पर इस बात को कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता मुझे जो है मैं धर्मी हूँ, ये इसलिए नहीं कि मेरी ओर से, वरन परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर उस धार्मिकता के मार्ग में मेरी अगुवाई करते हैं। So there we have the source of our righteousness, from where it is coming, for the name's sake of God. इसीलिए हम यहाँ पर जो हमारी धार्मिकता है वो कहाँ से आती है, उसका स्रोत हम यहाँ पर देख सकते हैं कि उस धार्मिकता का स्रोत वो परमेश्वर यहोवा है। His name's sake. और उसके नाम के कारण। The phrase for His name's sake, it keeps on repeating in the Bible in various portions. और बाइबल के भिन्न भिन्न स्थानों में हम इस बात को पढ़ते हैं कि उसके नाम के निमित्त इस वाक्य को बार बार दोहराया हुआ हम देखते हैं। In Ezekiel we read about God is guiding us for what? For His name's sake. और एजेकियल की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमारे अगुवाई करता है, किसके लिए? उसके नाम के निमित्त वह हमारी अगुवाई करते हैं। In Psalm 23 here we read God is forgiving our sins, or God is giving us righteousness for His name's sake. और हमने ये भजन संहिता में पढ़ा है कि परमेश्वर हमारे हमको धार्मिकता देते हैं वो उसके नाम के निमित्त। In Psalm 31 we see He delivers us for what? For His name's sake. और जब भजन संहिता 31 में आते तो वहां पर हम पढ़ते हैं कि वो हमको छुड़ाता है, किस लिए? उनके नाम के निमित्त वो हमें छुड़ाते हैं। In Psalm, that was in Psalm 79. In Psalm 31 we read He leads us because for His name's sake.
और वो हमें हमारी छुड़ाता है, वो भजन संहिता उसका 79 में है। और वो हमें जो हमारे मार्ग में हमारी अगुवाई करता है, वो किस लिए? वो उसके नाम के निमित्त, जिसको हम भजन संहिता 31 में पढ़ते हैं। And in Psalm 109 we read, he is good to us, he is benevolent to us, blessing us. For why? For his name's sake. और भजन संहिता हम 109 में पढ़ते हैं कि वो हमारे लिए अच्छा है, भला है। किस लिए? वो इसीलिए क्योंकि उसके नाम के निमित्त। Yeah, and finally in Psalm 143 we read, he is letting us live, he is giving us life for his name's sake. और जब हम फाइनली पढ़ते हैं कि वो हमें जीवन देता है, वो क्यों जीवन देते हैं? उनके नाम के निमित्त वो हमें जीवन देते हैं। In all these things we see everything is imputed to us. It is not because of any of our merit. और ये जब इन सब वचनों में हम देखते हैं, वो सब कुछ हमारे लिए किया गया है। और ये बात है, ये हमारी योग्यता के कारण नहीं। He is saying all these things God is doing to you not because of your merit, for his name's sake. और ये सब बातें जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ये सब बातें कर रहे हैं आपके लिए, वो इसलिए नहीं कि आपकी योग्यता के कारण, वरन वो परमेश्वर यहोवा उनके नाम के निमित्त वो सब कुछ हमारे लिए कर रहे हैं। Okay, so that is how this particular bridge is there. In one portion, a God who cannot do unrighteous things. और इसलिए जो इसके बीच में कि जो परमेश्वर जो कभी भी अधार्मिकता या अन्याय नहीं कर सकता, उसके बीच में ये पुल का समान कार्य करता है ये दोनों साइड को मिलाने के लिए। So the unrighteous humans can approach this righteous God because of his name's sake. और इसलिए जो अधर्मी अन्यायी मनुष्य जो है, वो उस धर्मी परमेश्वर तक उसकी पहुंच होती है, वो केवल और केवल उसके नाम के निमित्त। Okay, and how did that happen? How did God made it possible? और ये कैसे संभव हो सकता है? ये कैसे हुआ है? कैसे परमेश्वर ने इसको संभव किया? Okay, we read it again and again that the Lord is righteousness. It is an action from him. He is the one who makes us righteous. और ये बात जो है परमेश्वर की ओर से आरंभ होती है, क्योंकि परमेश्वर ही है वो जो हमें धर्मी बनाते हैं, धर्मी ठहराते हैं। Okay, in Isaiah chapter 61, we will read that. Isaiah chapter 61 verse 10. और जब हम यशायाह की पुस्तक उसका 61 का 61 वर्ष ब्रदर Verse 10. और 10वीं आयत को हम पढ़ेंगे। There we read about how God is making us righteous. और यहाँ पर हम लोग इस बात को पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमें कैसे धर्मी ठहराते हैं। यशायाह उसका 61 का 10, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धार्मिकता की चद्दर ऐसे उड़ा दी है जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजोता है और दुल्हन अपने आप को अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। There we read, he has covered me with the robe of righteousness. और इस भाग में हम लोग यही पढ़ा था कि उसने धार्मिकता की चद्दर मुझे उड़ा दी है। We know that we are talking about the salvation. God is imputing his righteousness into us. और हम अभी बात कर रहे हैं उद्धार के निमित्त की, परमेश्वर उसके नाम के निमित्त हम पर वो अपनी धार्मिकता को प्रकट करते हैं। He is the one who is clothing us with the robes of righteousness. और वही वो परमेश्वर हैं जो हमको धार्मिकता के वस्त्र उड़ाते हैं, धार्मिकता की चद्दर उड़ाता है। In the prophecies of Isaiah, we again read how God is doing that. How is this made possible? और हम इस बात को जब पढ़ेंगे कि परमेश्वर ये सब कैसे कर पा रहे हैं, ये परमेश्वर के करना कैसे संभव होता है। In verse 53, chapter 53, verse 11. और यशायाह उसका 53 अध्याय और वचन 11 को जब हम पढ़ें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा,
अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। Okay, so there we have the plan of God, how you will be called as righteous. और यहाँ पर इस भाग में हम पढ़ते हैं कि वो परमेश्वर की योजना कैसे आप धर्मी ठहराएंगे, धर्मी बन जाएंगे, उसकी योजना को, परमेश्वर की योजना को हम यहाँ पर देखते हैं। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, God is giving us this great privilege to address him as Jehovah Sidkenu, the Lord is my righteousness. इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमें ये अवसर दे रहे हैं कि हम उस परमेश्वर की यहोवा जो सकीना है, मेरी धार्मिकता है, उसको हम घोषणा करें, उसके हम नाम को ले। Yeah, it is not just by itself. There is a purpose. There is some action behind it. और ये धार्मिकता जो है अपने आप नहीं आ जाती है, अपने आप नहीं आई है, वरन उसके पीछे एक जो है क्रिया है, उसको करने वाला कोई है। Okay, and that is what we said. Why we could today call God is my righteousness. और इसी बात को तो हमने आज पढ़ा है कि आखिर क्यों आज भी हम परमेश्वर की बात कह सकते हैं कि परमेश्वर मेरी धार्मिकता है। Because someone we read here, the anguish of his soul, by his sadness, by his trials, he made many people righteous. क्योंकि हमने यही तो इस बात में पढ़ा था कि वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा, अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा। So he देखो आवाज आ रही है मेरी? जी ब्रदर, आ रही है। ओके प्लीज, ओके देन कंटिन्यू, थैंक यू। Someone had to suffer here, someone had to take that pain and suffering. और हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं कि किसी ना किसी को सतावट झेलनी पड़ेगी। Okay, in verse 11 we saw, he shall see the labor, that labor is of whom? Of the Messiah, of our Lord Jesus Christ. और हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि किसी ना किसी को ये परिश्रम करना पड़ेगा, सतावट सहनी पड़ेगी, और ये सतावट किसके विषय में बता रही है? वो है केवल हमारे मसीहा के विषय में। Yeah, and here he's saying that Messiah, he will undergo that labor, that great pain, and he will bring many to be righteous. और हम लोग देखते हैं कि हमारा जो मसीहा है उसको बहुत सताया जाएगा, और उसके सताने के द्वारा बहुत लोग उद्धार पाएंगे और अच्छे होंगे। Okay, so that is the reason today we have an imputed righteousness. The righteousness is from our Lord. और उसके उन कार्य के द्वारा आज जो हम बहुत सारे लोग धार्मिकता के रास्ते पर चल रहे हैं, धर्मी बन रहे हैं, वो धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह की है। See how now if I put it in context, in Jeremiah we read that it is the name of a king. The Lord is our righteousness. और हमने यिर्मयाह में इस बात को पढ़ा है कि ये जो एक राजा के नाम है, उसके नाम की उपाधि है। And that king is no one other than the branch of David, which is our Lord Jesus Christ. और वो जो राजा है वो एक ऐसे अंकुर जो धर्मी अंकुर से उगा है, और वो जो धर्मी अंकुर है, वो वंश है, वो प्रभु यीशु मसीह वहां से आते हैं। But now consider this, when God is taking this title to himself, that the Lord is your righteousness, और हम लोग देखते हैं जब परमेश्वर उस टाइटल को, उस उपाधि को अपने लिए लेते हैं कि परमेश्वर हम धार्मिक हैं, धर्मी हैं, what is in his mind is the cross of Calvary. That is where God became our righteousness. और ये जो धार्मिकता है प्रभु यीशु मसीह को कलवरी क्रूस तक ले गई। Okay, when God is giving him his name as Jehovah Sidkenu, और जब परमेश्वर इस नाम को लेते हैं कि यहोवा सिक्योनो, he is mentioning, or in his mind the cross of Calvary is pictured. और उस समय जो कलवरी जो क्रूस है वो प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के जो मस्तिष्क में ये पिक्चर है, ये फोटो है उनके जीवन।
he is talking about a king. Maybe to Jeremiah it appeared, okay, we are talking about a great king. He is a king, but it is because of his suffering in the cross of Calvary. और ये जो बात है वो यिर्मयाह की भविष्यवक्ता की पुस्तक में यिर्मयाह को प्रदर्शित किया गया, दर्शन दिया गया, और ये जो पिक्चर है, ये जो पूरा वृतांत है, वो प्रभु यीशु मसीह के लिए है. And that is the peculiarity of this title. This title is talking about the cross of Calvary. और ये जो इस जो टाइटल की उपाधि की एक विशेषता है, वो है प्रभु यीशु मसीह की, और जो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस तक ले गई. Okay, it is because of the cross and the redemptive death that he was able to impute the righteousness in us. और ये जो कार्य है वो मृत्यु तक किया गया, क्रूस की मृत्यु तक फैली, ताकि हमारे अंदर धार्मिकता को प्रवेश किया जा सके. In Romans chapter 1 verse 16 to 17, Romans chapter 1 verse 16 to 17, हम लोग रोमियो 1 अध्याय 16 से 17 में इस प्रकार से पढ़ते हैं. There we read about the righteousness. और हम लोग वहां पर धार्मिकता के विषय में पढ़ते हैं. Romans chapter 1 verse 16 and 17. रोमियो 1 16 और 17 वचन हम लोग पढ़ेंगे. क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा. Okay. When Paul is talking about the gospel of Lord Jesus Christ, जब पौलुस प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के विषय में बताते हैं, he is saying that I am not ashamed of the gospel. और वे कहते हैं मैं सुसमाचार कहने से लजाता नहीं हूं. And in verse 7 he is saying why, what is the peculiarity of this gospel? और आगे हम लोग पढ़ते हैं कि क्यों वे नहीं लजाते हैं, इस सुसमाचार की क्या विशेषता है. It is the righteousness of God. क्योंकि ये परमेश्वर की धार्मिकता है. Okay, it is through the gospel that the righteousness of God is revealed from faith to faith. और ये परमेश्वर की धार्मिकता सुसमाचार के द्वारा विश्वास से विश्वासियों तक इसको प्रकट किया गया है. Okay, so now we are talking about how this righteousness is being imputed. और हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि ये विश्वासियों में ये धार्मिकता कैसे प्रवेश की गई है. Okay, so again let me recap. There are two aspects. One is a God who is completely righteous. He is God, the righteous God. और हम लोग, मैं और आपको समझाने के लिए कहूंगा, जो परमेश्वर हैं वो पूर्णतः धर्मी है और धार्मिक कार्य करने के लिए ही बाध्य है वे केवल. In the other hand, we have man, us, who is completely unrighteous. We are born in iniquity. एक तरफ परमेश्वर जो धर्मी है, दूसरी तरफ मनुष्य जो पूरी तरह से अधार्मिक है. Okay, so understand that is the first teaching. और ये जो समझिए जो पहली शिक्षा हम लोगों ने सीखा है. And then God is saying, it is my name. I am giving you my title. I am Jehovah Sitkenu, the Lord who is your righteousness. परमेश्वर देखिए किस प्रकार से कहते हैं कि मैं अपनी उपाधि को, मैं अपने नाम को आपको दे रहा हूं. और जो हम लोगों ने अब सीख रहे हैं, यहोवा सिक्योनो, मतलब यहोवा जो धार्मी है, धार्मिक है, वो हमारी धार्मिक बन सकते हैं. Yeah, the name of Jehovah Sitkenu means the Lord is our righteousness. और जो यहोवा सिक्योनो मतलब परमेश्वर हमारी धार्मिकता है. Now, how is it possible? How is this made into effect? How is the practicality of it? अब सवाल ये है कि ये जो धार्मिकता परमेश्वर की हमारी कैसे बन सकती है हमारे जीवन में, ये हम लोग इसको कैसे अभ्यास कर सकते हैं. And then we realize the righteousness is because of His name's sake. और ये जो धार्मिकता है उनके नाम के निमित्त के लिए है. Okay, so David is saying it is not my righteousness. It is for God's name's sake that He is making me righteous.
दाऊद राजा कहते हैं ये धार्मिकता मेरी नहीं है, लेकिन परमेश्वर अपने नाम के लिए मुझको धार्मिक बना रहे हैं। And in Jeremiah, in Isaiah, we saw he is clothed us with the robes of righteousness. He is the one who is imputing the righteousness into us. और हम लोग यशाया में पढ़ते हैं कि जो परमेश्वर धर्मी है, हम जो धार्मिक नहीं है, लेकिन अपनी धार्मिकता को हमारे अंदर वो प्रवेश कर रहे हैं। And then we saw in Isaiah chapter 53 that it is by the labor, by the death of our Lord Jesus Christ on the cross of Calvary that he is able to make us righteous. और हम लोग यशाया 53 में इस प्रकार से पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को घायल करके अपराधों के लिए हमारे अंदर इस प्रकार से धार्मिकता को प्रवेशित किया है। And now in Romans we are reading that gospel, the Lord Jesus Christ gospel, that is what makes you a righteous man. और अभी हम लोग रोमियो में पढ़ते हैं कि जो सुसमाचार है वह हमें धार्मिक बनाते हैं। It is the righteousness, and how it is mentioned by faith. और देखिए जो धार्मिकता है वो कैसे बताई गई है, विश्वास के द्वारा। Okay, so now that is how this connection is made. That is how God is becoming our righteousness. और ये बात को देखिए कि परमेश्वर हमें किस प्रकार से अपने नाम के निमित्त धर्मी बनाते हैं। Okay, it is for the gospel's sake. It is the power of the gospel that by faith we have been called as righteous. और देखिए परमेश्वर हमको सुसमाचार के द्वारा धर्मी बनाते हैं केवल और केवल अपने नाम के लिए। Okay, in 2 Corinthians we once again read about how Jesus Christ became our righteousness. और हम लोग दूसरा कुरिन्थियों में भी इस बात को पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारी धार्मिकता कैसे बन गए हैं। 2 Corinthians chapter 5 verse 21. आइए हम लोग पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों 5 का 21 वचन। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 21। For he made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him. और हम लोग इस प्रकार से पढ़ते हैं, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। Okay, first we saw God is our righteousness. पहला हमने देखा कि परमेश्वर हमारी धार्मिकता है। And here we are reading that we have become the righteousness of God in him. और उसके द्वारा हम लोग परमेश्वर की धार्मिकता बन गए हैं। Okay, now that connection is made complete. अभी देखिए ये संबंध हमसे जोड़ा गया है वो पूर्ण हो गया है। Okay, the title which was given by God is that I will be their righteousness. और परमेश्वर का जो वचन है हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के वायदा रहा मैं उनकी धार्मिकता बन जाऊंगा। And then we saw the process how that happened. और हम लोगों ने इस गति को देखा, इसको पूर्ण होते हुए देखा कि कैसे बन जाएंगे। It is not by our sake, it is for his own sake. और ये हम अपने लिए, हमारे लिए वो धार्मिकता नहीं है, हम धर्मी बन रहे हैं तो परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए। And we saw it was imputed. It is he has clothed us with the garments of salvation. और हम जानते हैं कि उन्होंने हमको उद्धार के जो कपड़े दिए हैं। And then we also saw it is through the suffering of our Lord on the cross of Calvary. और हम जानते हैं ये जो उद्धार के कपड़े हमको मिले हैं प्रभु यीशु मसीह ने जो ताड़ना सही है क्रूस के ऊपर, उसके द्वारा मिले हैं। And here in 2 Corinthians we saw that he made him a sin. Jesus Christ knew no sin, but he paid the penalty for our sin. देखिए हम लोग किस प्रकार से परमेश्वर हमको ये वचन में पढ़ते हैं, वो पाप नहीं जानते थे लेकिन उसी ने उसको पाप ठहराया ताकि हम लोग धर्मी गिने जाएं। And now we have become righteousness. और अब हम धार्मिक व्यक्ति बन गए हैं, धर्मी बन गए। We see it in complete circle. Now we have become the righteousness of God. अभी देखिए ये पूरे कहानी को हमने समझ लिया है, अब हम लोग परमेश्वर की धार्मिकता बन गए हैं। Okay, and that is why today we can call him as Jehovah Sidkenu. The Lord is our righteousness. और ये सब पढ़ने के बाद हम लोग यही कह सकते हैं कि यहोवा सिक्केनो, परमेश्वर हमारी धार्मिकता है।
My dear brothers and sisters, this is a very personal, a very important title of Lord. मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपाधि है परमेश्वर की। Okay, maybe when we talk about Jehovah Jireh, we know that God blesses, God is benevolent to everyone in this world. और जब हम लोग यहोवा यीरे के विषय में सीखते हैं या सुनते हैं तो हम इससे ये समझते हैं कि परमेश्वर ने सबको आशीष किया है और सब कुछ देने वाले हैं। Sun shines on the righteous and the unrighteous. Rain comes on the righteous and the unrighteous. और हम जानते हैं परमेश्वर जो बारिश करते हैं वो धर्मियों के ऊपर भी करते हैं, अधर्मियों के ऊपर भी करते हैं। Okay. But when we talk about Jehovah Sidkenu, the Lord is my righteousness. और जब हम लोग यहोवा सिक्योनो के बारे में सीखते हैं या सुनते हैं, it is applicable only to the believers. ये केवल और केवल विश्वासियों के लिए ही है। And this was not by, it is not a title by namesake. Lord had to act on it. और ये जो क्या है, ये जो धार्मिकता जो नाम दिया गया है वो केवल नाम के लिए नहीं है, एक दिखावे के लिए नहीं है। परमेश्वर जब हमको धार्मिक बनाते हैं तो हमारे जीवन में कार्य भी करते हैं। Yeah, he had to sacrifice himself on the cross of Calvary so that he can take this title, Jehovah Sidkenu, I am your righteousness. और देखिए प्रभु यीशु मसीह ने इस उपाधि को देने के लिए क्रूस को, वो मृत्यु को, उस ताड़ना को, सतावट को सहा। जो व्यक्ति को धार्मिक बनाया जाता है वो भी इसी प्रकार से गुजरता है, गुजरना चाहिए। Yeah, no, what I'm saying is that when God is taking this title, he had to suffer in the cross of Calvary so that he can become Jehovah Sidkenu. ओह सॉरी। ये कहने का मतलब है जब परमेश्वर जब सिक्योनो, यहोवा सिक्योनो ये टाइटल को लेते अपने आप को, तो परमेश्वर को वो क्रूस की ताड़ना, क्रूस की मृत्यु को सहना है। And that is how he can become our righteousness. There was no other way. और क्रूस के द्वारा ही, क्रूस ही एक ऐसा मार्ग है उसके द्वारा परमेश्वर हमारी धार्मिकता बन सकते हैं। So how emotional this title is to God when God is saying, I am your righteousness. The cross of Calvary is in his line. और देखिए ये कितना भावनापूर्ण और भावपूर्ण ये जो बात है कि परमेश्वर हमारी धार्मिकता बनने के लिए उन्होंने मृत्यु की सजा को भी सह लिया। In Corinthians we read that he became a sin for us so that we can become the righteousness of God today. हम लोगों ने दूसरा कुरिन्थियों 5:21 में पढ़ा कि वो हमारे लिए पाप बन गए ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। And for those people who are unbelievers yet to come to the Lord, we have this promise in 1 John chapter 1 verse 9. और हम लोग जो लोगों को देख रहे हैं, जो भी अभी जो विश्वासी हैं, प्रभु पर विश्वास नहीं किए हैं, उनके लिए वायदा है। यह पहला यूहन्ना 1:9 में हम लोग पढ़ते हैं। There John is telling how you can become righteous. और यूहन्ना उस अपनी पत्री में कहते हैं कि हम परमेश्वर के लिए धर्मी कैसे बन सकते हैं। Till now we understood all the plan, how it is made, how God is designed it. और हम लोगों ने ये परमेश्वर के इस डिजाइन को, ये कैसे परमेश्वर ने ये जो मार्ग हमारे लिए बनाया है उसको हमने देखा है। Now we are saying, now if a man want to be righteous, how can he become righteous? और यदि हमें तो कोई भाई बहन वो धर्मी बनना चाहते हैं तो वो किस प्रकार से बन सकते हैं, हम लोग उस वचन में देखते हैं। We read that in 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. और हम लोग पढ़ते हैं यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। Okay, so that is the only way for a man to become righteous. और यही मनुष्य के लिए सर्वोत्तम मार्ग है, इसके द्वारा वे धर्मी बन सकते हैं। We confess that our sins and accept Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, you become righteous. और आप जब अपने पापों को मान लेते हैं और प्रभु को, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं, वे हमें क्षमा कर देते हैं, शुद्ध कर देते हैं। That is as simple as that. और ये बहुत ही साधारण है। But to make you righteous, God had to suffer the cross of Calvary.
आपको धर्मी बनाना अब बहुत सरल है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को इस कार्य को करने के लिए बहुत ताड़ना और सतावट का सामना करना पड़ा। Let us praise God who has given us this title and made us righteous people. आइए हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें कि हमको परमेश्वर ने तकलीफ सहकर और हमको ये जो टाइटल है, हमको ये उपाधि दे दी कि वे हमारी धार्मिकता बन गए। And so let us be encouraged and thank God that today we have the right, the authority, and the full ability to call him as Jehovah Sidkenu. आइए हम एक दूसरे को उत्साहित करें और इस जो उपाधि में, इस नाम में हम आगे बढ़ें कि यहोवा सिक्योनो, परमेश्वर मेरी, हमारी धार्मिकता है। It is not a title which is applicable to the world. It is only for us. It is us who can say that God is our righteousness. ये जो नाम है यहोवा सिक्योनो, अब यहो परमेश्वर हमारी धार्मिकता है, ये संसार के लिए नहीं है, केवल और केवल विश्वासियों के लिए है ये नाम। Yeah, the name which is given by God himself, he took the title and he made it possible through the cross of Calvary. और ये जो नाम है परमेश्वर ने खुद अपने लिए लिया है और क्रूस का रास्ता बनाकर हमको दे दिया है। May his name be glorified. परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। थैंक यू सो मच मनु सर, सुंदर और ये डीप